Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is related to off on-campus hiring updates of top companies Infosys, Cognizant, TCS, Accenture, Wipro, Capgemini के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में टाइम स्टैम्प्स हैं, सो जिस भी टाइम स्टैम्प को आपको देखना है, जैसे आपको इन्फोसिस का अपडेट देखना है तो आप उस टाइम स्टैम्प को चेकआउट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज फॉर द फ्रेशर्स बैच 24 एंड द प्रीवियस बैचेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट अपडेट इज फ्रॉम इन्फोसिस। इन्फोसिस ने इस बार दो हायरिंग निकाली है। द फर्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी इज हैक विद इन्फी, दैट इज अ नेशनल लेवल हैकेथॉन, but this time Infosys conduct only in their top colleges. Okay, and now today Infosys announced the specialist programmer opportunity that is for 9.5 LPA for 2024 batch. So basically Infosys announced the campus hiring till now, so we have to wait for the another update that is related to the off campus hiring for 2024 batch, because 22 and 23 batch hiring is completed. I know only Hack with Infi and InfiTQ is completed for 23 batch. There is no hiring for system engineer. But as for 22 batch, there is a hiring for system engineer like Hack with Infi as well as the InfiTQ. So 22 बैच के लिए यहाँ पर ये अपडेट है कि उनके लिए अभी जिन्होंने इन्फोसिस की एग्जाम दी थी उनके लिए अभी यहाँ पर प्री वर्चुअल ट्रेनिंग के मेल आना स्टार्ट हो गए हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस उस हिसाब से चलती जाएगी। Next company is related to Cognizant. Cognizant announced the Genesee hiring for the campus. Okay, like basically जिन कॉलेजेस के साथ Cognizant का कोलैबोरेशन है, या मान सकते हैं आपका कॉलेज जो है वो Cognizant से टाई अप है, सो उन कॉलेजेस में अभी Cognizant ने Genesee हायरिंग अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है। बेसिकली Genesee का नेक्स्ट फेज भी आ चुका है। द एग्जाम इज टुमारो, दैट इज ऑन 18th June. द फर्स्ट राउंड इज ऑलवेज कम्युनिकेशन असेसमेंट. As I already said in all my previous video, Cognizant conduct the examination in the form of phases. So we have to wait for the off-campus hiring. 23 बैच के लिए भी hiring आई थी Cognizant की तरफ से, but that is related to the support role. Okay, so we have to wait for the next update from the Cognizant team. And I already shared the updates with all of you that is related to Cognizant. कैसे आपको prepare करना है, क्या सारी चीजें। Next company is related to TCS. As we know that TCS NQT24 interview is ongoing, so you have to prepare very well for the interview, and I suggest you to watch multiple experiences on YouTube. Okay, definitely it will very helpful for everyone. And the important point that the TCS NQT process is also in the form of phases. Okay, so अभी आपने इंटरव्यू दिए हैं, अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको ऑफर लेटर का अपडेट आएगा नेक्स्ट स्टेप पे, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट होगी। सो दिस अपडेट इज रिलेटेड टू टीसीएस, बट वी गॉट द अपडेट दैट टीसीएस हैज 80,000 ओपन पोजीशन ड्यू टू स्किल गैप. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी गॉट द अपडेट फ्रॉम टीसीएस दैट इज रिलेटेड टू न्यू हायरिंग. फोर्थ कंपनी इज टेक महिंद्रा. Tech Mahindra already completed the 22-23 batch hiring in many phases. That is for associate software engineer and super coder role. Okay, so we are waiting for the 2024 batch of campus mass hiring. Like in the previous 5 to 6 days, there is a hiring posted by Tech Mahindra Ahmedabad team that they are hiring for testing role. गाइस वो हायरिंग बहुत अलग है, और जो एक्चुअल में 24 की जो मास हायरिंग आती है वो काफी अलग है। सो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो हायरिंग आएगी मैं आपको अपडेट बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू एक्सेंचर। जो नेक्स्ट कंपनी हमारी वो है एक्सेंचर। बेसिकली फॉर द 22 बैच एक्सेंचर कंप्लीटेड द हायरिंग. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 23-24 बैच, हायरिंग इज करंटली in the process. Many of the 23-24 batch candidates completed their examination and interview. अब बहुत सारी न्यूज आ रही है कि एक्सेंचर मास रिजेक्शन कर रहा है. If you are from 23-24 batch, I suggest you to talk to your seniors. Is they like they are from 22 batch? Okay, उनसे बात करके देखिए कि पहले एक्सेंचर में जब उन्होंने अप्लाई करा था तो उन्होंने इंटरव्यू भी अच्छा दिया था, बट कंपनी ने क्या बोला था, वी हैव नो बी फिटिंग रोल्स फॉर यू एट दिस टाइम, क्योंकि उस टाइम रिसेशन चल रहा था और रिजेक्शन भी आते हैं. एक्सेंचर इज कंसिडरिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज द इंटरव्यू. सो मैं आप सभी को कहूंगा कि मान लो अगर आपको एक्सेंचर से रिजेक्शन आया है, ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है. ओके, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पोस्टेड एवरी डे बेसिस. ओके, आई
सजेस्ट यू टू अप्लाई फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। एक चीज को लेके मत बैठो और दिमाग में तो बिल्कुल हमें ये नहीं सोचना है कि इसमें रिजेक्शन हो गया तो दूसरी किसी कंपनी में नहीं होगा। आई ऑलवेज सेड इफ यू गेट रिजेक्टेड इन एनी कंपनी, दैट इज नॉट कॉल्ड द रिजेक्शन, दैट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस। दो ही चीजें होती है, फर्स्ट सक्सेस एंड सेकेंड इज एक्सपीरियंस। देयर इज नो वर्ड लाइक रिजेक्शन। अगर कहीं से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वहां पे रिजेक्शन हुआ है, सो बेसिकली द अनदर गुड अपॉर्चुनिटी और अदर गुड अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। सो ऐसा नहीं है कि होप खो देनी है, ठीक है, अप्लाई करते रहना है। ऑनलाइन लर्निंग टीम आप सभी के साथ हमेशा है, अपडेट्स हम शेयर करेंगे। इफ आई एम टॉक अबाउट द एक्सेंचर रिजल्ट, इंटरव्यू रिजल्ट एंड एनी अपडेट, इट विल कम्स डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ फेजेस। उसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है, आप किसी से भी पूछ लो जाके, खुद एक्सेंचर टीम को भी बोलो, वो भी आपको टाइमलाइंस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट कंपनी इज HCL Tech. HCL Tech announced the graduate trainee opportunity for 22, 23, 24 batch. That is basically for non-tech courses, okay? Because if I'm talk about the BE, BTech, ME, MTech hiring, we are still waiting. But for the 24 batch, for the top 100 colleges, okay, or we can say that the top colleges, HCL Tech ने officially announced कर दी थी opportunity, but we have to wait for the off-campus hiring. If I'm talk about the graduate trainee role, that is related to support and that is very different from the graduate engineer trainee role. So there is a huge difference between graduate engineer trainee, graduate trainee role. So काफी सारी प्रोसेस अलग होती है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी कैपजेमिनी। कैपजेमिनी के बारे में अगर बात करें, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ईयर कैपजेमिनी अनाउंस्ड द टू बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट इज फॉर 2024 बैच ऑन कैंपस, दैट इज फॉर एनालिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट, and second opportunity is for women candidates, that is a network engineer opportunity. So we are hoping that Capgemini will soon announce the off campus hiring for 24 batch. It will totally depends on their phases and timelines. बट अगर हम कैपजेमिनी की बात करें तो जब रिसेशन आया था तो काफी सारी चीजें देखी गई कैपजेमिनी से रिलेटेड कि ऑनबोर्डिंग डिले हुई थी, काफी सारी प्रोसेस है, तो वो मतलब कैपजेमिनी पे डिपेंड करेगा। लास्ट कंपनी हमारी विप्रो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द विप्रो, they are currently doing the onboarding for 2022 batch as of now, because they not announced any of the opportunity for the like 24 batch 23 batch, because Wipro का जो elite और turbo program है वो tech की hiring होती है। and if I'm talking about the like WILP and SIM program, that is a different hiring. so WILP और SIM की hiring आ सकती है because that hiring is very different, but जो elite और WILP है, sorry elite और जो turbo है, वो पहले विप्रो टीम ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर वो हायरिंग अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ऑल द कंपनीज। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।